write down the dunning. Dunning means you can write down if customer does not make payment. So spelling क्या है? Dunning, D-U-N-N-I-N-G. D ना? D-U-N-N-I-N-G. Reminder. Dunning means reminder. And आगे लिख लो. If customer does not make payment as per the terms of payment. If customer does not make the payment as per the terms of payment, system will issue dunning letter. So automatically वो customer को letter जाएगा payment reminder. Okay, so that is called as per the terms payment. Terms of payment. Sir. Okay. If customer does not make the payment as per the terms of payment, system will issue dunning letter. System will issue dunning letter. So अपने आप system से उनको dunning letter जाता है. So there are process how to do that. Okay. Next, उसमें first step लिखो dunning area. D-U-N-N-I-N-G. Dunning area. उसके आगे लिखो. It can be company code level. It can be company code level, region wise and location wise. ये company code level पे ही रहेगा, region wise and location wise. Then second step, dunning level. Level, L-E-V-E-L-S. Dunning levels. यानी आप मैक्सिमम कितने उसको रिमाइंडर भेजोगे, लेटर भेजोगे. सो टाइप्स ऑफ लेटर मैक्सिमम 9. यू कैन राइट डाउन टाइप्स ऑफ लेटर मैक्सिमम 9. यानी हम 9 लेटर्स उनको भेज पाएंगे. ओके. देन थर्ड स्टेप, डनिंग इंटरवल. डनिंग इंटरवल रहेगा, यानी आप उसको फ्रीक्वेंटली कितने कितने दिन में आप डनिंग लेटर इशू करोगे. तो यू कैन राइट डाउन 10 डेज. 10 डेज के एवरी 10 डेज हम उसको रिमाइंडर भेजेंगे फॉर द पेमेंट. देन ग्रेस पीरियड. ग्रेस पीरियड मीन्स कि अगर आज मैंने उसका सेल्स इनवॉइस कुछ सेल किया है तो उसमें 2 दिन का हम गैप रखेंगे. तो फर्स्ट लेटर उसको 12 डेज बाद जाएगा. अगर हमने 10 दिन का रिमाइंडर ऐसा सेट किया है तो दैट इज ग्रेस पीरियड. ओके. सो it's a fourth point ना? Yeah, it's a fourth point. Grace, not fourth I think. Fourth. ग्रेस पीरियड बोलेंगे उसको. Okay. Then next, fifth point, dunning charges. Dunning charges. Okay. For sending dunning, we can collect charges from customer. For sending dunning letter, we can collect डनिंग चार्जेस. हम कस्टमर से चार्जेस भी लेते हैं. वो चार्जेस कैसे होंगे इसमें लिख लो. इट कैन बी लेवल बेस, यानी हमने उसको अगर 2-3 लेटर भेजने के बाद उसके अलग अलग चार्जेस लगे. इट कैन बी लेवल बेस स्लैश अमाउंट बेस करो. इट कैन बी लेवल बेस अमाउंट. ओके. उसके नीचे लिखो इट कैन बी परसेंटेज स्लैश अमाउंट. ये परसेंटेज वाइज भी हम उससे ले सकते हैं अमाउंट. नेक्स्ट लिखो it can be percentage
स्लैश अमाउंट. ओके, इट कैन बी फिक्स परसेंटेज करो, फिक्स परसेंटेज लिखो. इट कैन बी फिक्स परसेंटेज स्लैश अमाउंट. उसके नीचे लिखो इट विल बी शोन ओनली इन द लेटर. ये जो अमाउंट रहेगा इट विल शो इन ओनली लेटर. इट विल बी शोन ओनली इन लेटर. उसके नीचे लिखो इट विल बी नॉट posted to account. It will be not posted to account. ये अकाउंट में पोस्ट नहीं होगा, ओनली लेटर में दिखेगा आपको. So now write down the customization. Step 1. Customization में you can write down step 1. Define dunning area. Write down define dunning area. So we have to create dunning area first in the system. तो यहाँ पे हर एक स्टेप प्रॉपरली लिखो. ओके, अगर रिकॉर्डिंग भी होता है तो बाद में आप एक एक स्टेप प्रॉपरली चेक करो, क्योंकि ये छोटा पार्ट है बट बहुत ज्यादा सेटिंग है. ओके, सो पार्ट इन SPRO. Financial accounting, then account receivable, accounts payable. Financial accounting, account receivable, accounts payable. Then business transaction. Then dunning. Then basic setting for dunning. Basic setting for dunning. Then define dunning area. Basic setting for dunning. Then define dunning area. यहाँ पे आना है. Okay. Then click here. Then select new entry. यहाँ पे new entry select करना. Select new entry. So ignore this and enter. Okay, and enter your company code. TTSP, Tata Steel, जो हमने create किया. Okay, and area should be blank. वो हम बाद में create करेंगे. तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है. Write down area blank and description. Dunning area for Tata Steel. सबने लिख लिया step. Then select save. So again ignore this message. अगर वो येलो कलर में आ रहा है, that is only error. Okay. Okay. Then next step. Define dunning procedure. Second step. Define dunning procedure. Define dunning procedure. उसके path लिख लो. Up to the dunning path is same. Up to the dunning path is same. Then dunning procedure. Then define dunning procedure. इसका T code है FBMP. F for forest, B for Bombay, M for monkey, P for parrot. सर रिपीट कीजिएगा. FB. M for monkey, P for parrot. FBMP. B for ball ना. P for FB, right? FBMP. Okay, good. तो यहाँ पे पहुंचने के बाद select new procedure. Select new procedure. Okay. So यहाँ पे new procedure select करने के बाद enter your any identification.
TTS HT कर दो, TST 1 करते हैं, 4 डिजिट ही लेते हैं, तो ठीक है। एंड राइट डाउन डिस्क्रिप्शन डनिंग ओके। एंड इंटरवल, सो इंटरवल कितने डेज का रहेगा, हम उसको रनिंग लेटर कितने कितने दिन बाद, 10 डेज के बाद, यू कैन राइट डाउन 10 डेज। मैक्सिमम हम यहाँ पे 4 डेज करते हैं, 4 उसको इंटरवल पे देंगे। मैक्सिमम 9 कर सकते हैं, बट हम अभी अगर प्रैक्टिस करोगे तो वहां पे आपको बहुत सारा ये करना पड़ता है, दैट्स व्हाई 4। देन लाइन आइटम ग्रेस, यानी कितने दिन बाद फर्स्ट लेटर जाएगा, उसमें गैप कितने दिन की होना चाहिए, तो 2 डेज करते हैं, फर्स्ट लेटर उसको 12 डेज बाद जाएगा। इंटरवल, इंटरेस्ट इंटरवल हम स्टैंडर्ड लेते हैं, दैट इज 0 1 0, okay, and select standard transaction dunning checkbox, select standard transaction dunning checkbox, okay, checkbox को select करना है, okay, then next step select dunning text, लिख लो, next step नहीं, यहाँ पे करना है, select dunning text बटन, इसको select करना है, ignore this message and enter, okay, then select your company code, TTST, Tata Steel, okay, then select account type customer, okay, then select enter, so you will get this screen। ये आने के बाद आपको यहाँ पे select, then select new company code, okay, click on this, select new company code and enter your company code and enter, okay, then select separate notice per dunning checkbox, right, select separate notice per dunning checkbox, then select back 1, select back 2 time and save, select, देखो select back 2 time and save, okay, then उसके बाद है then select dunning level, levels button, click on this, okay, then select always done, select always done checkbox for all 4 levels, so हम ये सभी 4 levels को क्लिक करना है, okay, then select dunning text again, dunning text को select करो, then again select your company code and customer ID button and select enter, so यहाँ पे हमको लेवल फिल करना है, so लेवल में आपको लिखना है फर्स्ट लेटर जाएगा और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन रहता है, तो मैं बताता हूँ आपको, ये आपको यहाँ पे लिखना है, ये टेबल ड्रॉ कर दो आप, 4 ये आपको सेम ही है, यहाँ पे 1 1 2 जगह है, और ये दिस इज द फॉर्मेट,
तो ऑटोमेटिकली जो डनिंग का फॉर्मेट होता है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होता है, दैट्स इट। ओके, ये तो आप फोटो निकाल लो, सो यू विल गेट ये कैसा करना है, इसमें टाइम जाएगा। ये टेक्स्ट ऐड करने के बाद then select back and select save. Again ignore this message. Okay, फिर वहां पे आपको और एक करना था, सॉरी, ये बैक जाने के बाद then select charges. रेडी बटन, then select charges. So यहाँ पे सिर्फ INR करना है, INR, तो करेंसी सिलेक्ट करना है, that's it. Okay, then select save. और यहाँ पे कुछ भी करना नहीं है आपको, सिर्फ करेंसी है करना है, क्योंकि हम उस पर चार्जेस कुछ कलेक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर लेवल वाइज अगर हम उससे चार्जेस करते तो यहाँ पे हमको लेवल करना है और अमाउंट, बट नॉर्मली आप ये फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो यू कैन जस्ट सिलेक्ट बैक एंड सिलेक्ट सेव। तो आपका TTST क्रिएट हो गया। ओके, सो दिस इज द डनिंग फॉर्मेट हो गया कि उनसे हम ये प्रोसीजर, डनिंग प्रोसीजर असाइन ये कर दिए। नाउ वी हैव टू असाइन दिस प्रोसीजर इन कस्टमर मास्टर डेटा। अगर कस्टमर मास्टर डेटा में अगर हमने असाइन किए हैं, तभी अगर कस्टमर हमको पेमेंट नहीं करता है तो ऑटोमेटिकली जब भी आप डनिंग रन करोगे आफ्टर 10 डेज, तो जितने भी कस्टमर का पेमेंट नहीं आया उनको ऑटोमेटिकली वो रिमाइंडर जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप लिखो, असाइन डनिंग प्रोसीजर in customer master data. Assign dunning procedure in customer master data. So path लिख लो उसका, accounting, financial accounting, account receivable, master record, then maintain centrally, and XD02 transaction score. आप डायरेक्टली ट्रांजैक्शन कोड से भी जा सकते हो, XD02 क्लिक करो यहाँ पे, then select your company code PTST. once कंपनी कोड सिलेक्ट करो तो इजीली आपको कस्टमर आपके कंपनी में जितने भी होंगे वो दिखेंगे। then select your customer. ओके, सो आपका कस्टमर सिलेक्ट करो, एंटर करो, देन क्लिक ऑन कंपनी कोड डेटा, then click on company code data, then click on correspondence tab, click on correspondence tab. okay, और यहाँ पे डनिंग प्रोसीजर में आपकी डनिंग प्रोसीजर जो बना है वो असाइन करो TTS. so send with the other customer. तो बाकी कस्टमर को भी आपको डनिंग लेटर भेजना है तो यू कैन सी, so यहाँ पे भी वही करें, then select save. okay, so this is the customization and अपनी ये customization कस्टमर डेटा में ये कर दिया। ओके, oh my god, okay, now end user area. तो अभी हमको for this you have to post some invoice, backdated invoice आपको पोस्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर मुझे उसको 10 दिन के बाद डनिंग लेटर रन करना है और आज हमको वो रन करना है, सो हमको क्या है बैकडेटेड कुछ इनवॉइस पोस्ट करेंगे, नियर बाय 15 डेज बैकडेटेड इनवॉइस पोस्ट करो। सो माय स्क्रीन इज विजिबल, शेयरिंग हो रहा है ना? ओके, मुझे लगा है। सो पोस्ट सम बैकडेटेड इनवॉइस, सो हम सेल्स इनवॉइस पोस्ट करते हैं कुछ बैकडेटेड। सो सेल्स इनवॉइस हम कहाँ से पोस्ट करते हैं? व्हाट इज टी कोड फॉर द सेल्स इनवॉइस पोस्टिंग?
F dash F dash 22. ओके, सो टुडे 16, तो हम 10 डेज बैक का करते हैं, तो फर्स्ट तारीख को ही करते हैं. ओके, दिस मंथ के 1 तारीख को हम एक इनवॉइस पोस्ट. सो डोंट फॉरगेट टू पोस्ट सम बैकडेटेड एंट्रीज, देन यू कैन रन रनिंग टुडे. तो डॉक्यूमेंट डेट एंड पोस्टिंग डेट दोनों बैकडेटेड करो. एंड करेंसी INR. So 20,000 का कुछ हम सेल्स कर रहे हैं. So you aware about this entry ना? Customer account debit to sales account, right? यहाँ से ये एरर आ गया क्या? ये आपको भी एरर आया है क्या आइटम कैटेगरी का? यस सर, मेरे को आया था. अच्छा, ये अगर आता है तो यू कैन राइट डाउन इफ यू गेट दिस एरर. यहाँ सर एरर कोड बताएंगे सर? इट्स नॉट एरर कोड, ऐसा कुछ नहीं है, वो आइटम कैटेगरी का एरर आया होगा आपको. सो यू कैन राइट डाउन इफ यू गेट द आइटम कैटेगरी एरर. एक सर स्पेल करेंगे एटम. आइटम कैटेगरी एरर नॉर्मल आइटम, यानी आपको सिस्टम को शो करना है कि दिस इज माय बैलेंस शीट एंड दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये कभी कभी एरर आता है. ओके, सो इन एसपीआरओ थोड़ा बैक या फ्रंट पेज पे लिख लो आप. फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू, यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू. देन बेटा मैं सेक आपको पांच बताता हूँ. सर आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है, मतलब स्टिक हो गई है. अच्छा, हमने दूसरा और ओके, इन एसपीआरओ फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू. देन एक मिनट, मुझे यहाँ का थोड़ा एक okay, fine. Financial accounting new, then general ledger accounting new, then business transaction, then document splitting, okay, then classify GL account for document splitting. Classify GL account for document. Then select your startup account. तो अपने यहाँ पे कैटेगरी डिफाइन नहीं किया, तो सो कभी कभी हमको ये डिफाइन करना पड़ता है, हर एक सर्वर के लिए नहीं होता है. तो यहाँ पे सिलेक्ट न्यू एंट्री करना है. सिलेक्ट न्यू एंट्री, और यहाँ पे हमने लाइबिलिटीज और एसेट क्या नंबर किए, 1 5 टाइम 0 1 5 टाइम 9. और ये हमारा कैटेगरी क्या है, बैलेंस शीट से. देन एसेट भी हमने क्या किए, 2 से 29. अगर आपने ये मेंटेन किया है तो ही मेंटेन करो, नहीं तो आपके जो FS00 में आपने चार्टअप अकाउंट ये बनाया है, चार्टअप अकाउंट जो आपके नंबर्स होंगे वो असाइन करना है. ओके, देन इनकम P999. So income is a part of revenue. Then select revenue account. 3,000. Then हमने क्या किए, expenses 4 5 टाइम 0 4 5 टाइम 9. Then select here expenses account. तो ये कैटेगरी हमको असाइन करना पड़ेगा.
So you can take a photo of this. अगर नहीं लिखा है तो then select save. Okay. ये कैटेगरी हमको सिस्टम को असाइन करना है जो भी आपकी सीरीज बनेंगे. Then select save. Then ये होने के बाद we can normally ये जो एरर था वो चले जाएगा. अगर ये देखो ये एरर था. There Yes, is sir. no atom category assigned to the GL account. ये सीरीज को नहीं था. तो हम बैक जाके और ये एंट्री करेंगे. ओके. सो 10 मिनट्स पे जाएगा तो हम और एक बार ये करते हैं. सो बैकडेटेड एंट्री करते हैं. Ignore this message. कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट ये हमारा एंट्री है. You can post some okay. And select another customer. Okay. So आपके अभी if you check the reports customer data में so you will say कस्टमर से हमको रिसीवेबल है 40,000 और वो अंडर ड्यू नहीं आउट ऑफ ड्यू हो गया बिकॉज देयर इज नो टर्म्स ऑफ पेमेंट. सो आज हमको उनको फर्स्ट लेटर भेजना है. डेनिंग लेटर भेजना है. So now you can write down next topic. Dunning run. Dunning run. So write down the path. In SAP menu, accounting, financial accounting, account receivable, then periodic processing, then इसका T कोड है F150. F150 आप डायरेक्टली जा सकते हैं. Okay. Then give today's date 16.0/2020 and identification TPST1 करते हैं. Okay. Then enter parameters. Then click on parameters. Click on parameters. Then Dunning dates. So आज तक डॉक्यूमेंट अप टू पोस्टेड आज तक जितने भी पोस्टेड हो गए अगर उनको अबाउट 10 डेज हो गया तो यू कैन सिलेक्ट योर कंपनी को TTXT. Okay. Then from customer to customer. So lowest to highest number करो. So पूरा आपके कस्टमर के ये आ जाएगा. Okay. So अपने पैरामीटर एंटर किए. Then click on status tab. Then select save. Okay. Then select schedule button. Okay. Then select output device. जो भी आपको आएगा तो maybe LP01 करो. LP01 output device.
ये स्टैंडर्ड होता है वो सिस्टम में. LP01. Then select continue. Then select start immediate checkbox. Then select schedule. Okay. उसके बाद एक लिख go and press enter. Go and press enter. Still you will get message Dunning selection is completed. यहाँ तक आपको करना है. Go and press enter. Still you will get message Dunning selection is completed. So ये complete हो जाएगा. तो अभी हमको प्रिंट आउट देखना है. Then select Dunning printout button. Dunning printout button. Okay. Then select again same device LP01 ही करो. And then select continue. Then click on print or enter. Again go and press enter. Still you will get message Dunning printout is completed. Again go and press enter. Still you will get message Dunning printout is completed. That's it. So आपका Dunning complete हो गया. So आपको चेक करना है कि Dunning लेटर हमने कस्टमर को कौन से भेजे. Then select Dunning history. Then select Dunning history. Okay. And select only your company code TTST. Okay. Then select execute. So you will see 40,000 or 25,000 के reminder भेजे. So how to check this? Keep cursor on any line item. Any line item. Keep cursor on any line item. And select display Dunning notice. And select print preview. So again you can select your output device. So you can check. कि उनको reminder क्या? First Dunning notice. So listed below you have paid the amount. This is the due. Yeah अपने आप जाएगा. So इसमें आपको कुछ changes चाहिए. तो जो parameters हमने add किए थे ना LP नहीं जो प्रिंट आउट पैरामीटर्स वहां पे चेंज करके अबैबर की हेल्प से हम ये चेंजेस कर सकते हैं. सो फर्स्ट डनिंग लेटर थोड़ा पोलाइट, सेकंड पोलाइट रहेगा, थर्ड थोड़ा वार्निंग रहेगा, फोर्थ नोटिस रहेगा, लीगल नोटिस रहेगा. तो ये दिस इज यूज फॉर कस्टमर क्रेडिबिलिटी. इवन यू कैन चेक इन अ कस्टमर मास्टर डेटा. गो एंड चेक इन XD03. आपके कस्टमर का पेमेंट या कितना डनिंग किया आपको दिख जाएगा इन करस्पॉन्डिंग. उनको फर्स्ट डनिंग लेटर हमने भेजा था 16 तारीख को यानी आज. सो दिस इज ऑल्सो यूज फॉर द क्रेडिट की कस्टमर को हमने नेक्स्ट सेल करना है या नहीं करना है इज डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ डनिंग लेटर. सो दिस इज ऑल्सो कम्स इन अ डिस्प्यूट मैनेजमेंट में भी आता है. दैट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल सप्लाई चेन मैनेजमेंट में एक डिस्प्यूट मैनेजमेंट करके होता है कस्टमर क्रेडिट्स. तो वहां पे भी इट इज यूजफुल फॉर यू. ओके. सो आई थिंक हो गया अपना 40 मिनट्स में. तो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द अकाउंट रिसीवेबल. सो कल से हम एक पार्ट करना है हमको सेल्स एंड परचेस टैक्स. देन वी विल स्टार्ट फॉर द एसेट अकाउंटिंग. ओके. तो थोड़ा प्रैक्टिस कर लो जितना भी आपका बचा है क्योंकि अभी हम अकाउंट पेएबल रिसीवेबल भी कंप्लीट हो गया है. So now we'll go for सर ये सर वेंडर्स के लिए भी होता है कि सिर्फ कस्टमर्स के लिए होता है डनिंग? डनिंग कस्टमर के लिए रहेगा. वेंडर हमको पेमेंट हमको करना पड़ता है. वेंडर हमको रिमाइंडर भेजता है. मटेरियल के लिए सर जैसे हम उसको रिमाइंडर करते हैं करें कि सर हमको मटेरियल अभी तक आया नहीं है. ये बिजनेस फ्लो नहीं है ना. ये दैट इज नॉट बिजनेस फ्लो. डनिंग इट इज यूज्ड फॉर द रिमाइंडर. उसमें हम लीगल एक्शन नहीं कर पाएंगे. अगर आपके परचेस ऑर्डर से कुछ कॉन्ट्रैक्ट होता है तब हम कर पाते हैं. इसमें नहीं कर पाएंगे. राइट. सो हमारा अभी टाइम खत्म हो जाएगा. सो आई विल सेंड यू द वीडियो एज वेल. सो वी विल डिस्कस अबाउट दिस अगेन. ओके. ओके. सो कल मिलते हैं.
थैंक यू सर।